How was the prelim strategy then, Karika? How do you remain so calm? Off days को कैसे handle करते थे? And how was your interview experience at Next IAS? Hello all of you. आज मेरे साथ हैं कनिका और कनिका का 9th रैंक है यूपीएससी में and I had been interacting with Kanika. Kanika has been our student also. And she is most importantly a person who's calm and poised at her age impressed me a lot. I'm sure आप लोगों को भी बहुत मदद मिलेगी हमारी इस बातचीत से. Purpose is only one. The purpose is to make sure that Kanika can share her important parts of journey, and in the process you learn how it is a better way to go for UPSC than otherwise. Kanika had her political science as optional, and Kanika has been taking political science as an undergraduate course also. So we will begin with things. She has been doing journal writing. She has been practicing pranayam. So Kanika, we begin with a basic question. ये बताइए that when did the journey begin? It started when the dream was, it was decided in my 7th standard that I'll be an IAS officer. So that was the starting point of the journey. Right. So quite early, imagine 7th standard, and then you planned things. I planned things accordingly. So it was pre-decided that in 9th I'll be not taking Sanskrit but Hindi. So few of the choices that a person has to make. Then in 11th, humanities would be my choice. And if one is taking humanities, one has to be 99% sure that it's only for UPSC. Like you are going to make it to UPSC, otherwise it doesn't serve you well. And then planning for LSA, that I'll be joining LSA, especially in political science honors, was also a planned decision. Then 1 year gap, which I got because of my age, because 21 is the eligibility criteria. And then I always wanted to make it in my first attempt. Couldn't, but then came up with greater strength, more strength, and now I've got the miracle of my life. It's a dream come true moment, and I'm just thankful to Lord for all of it. I don't know whether I deserve it. No, you do deserve it, definitely. You have done all the hard work. तो आप में से जो लोग हिंदी माध्यम से हैं उनकी सुविधा के लिए मैं बस इतना बता दूं कि कनिका ने आर्ट्स की ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट चूज किया. आर्ट्स लिया वो इसलिए 11th में अपने, क्योंकि वो लेना चाहते थे आगे चलकर यूपीएससी में अपनी तैयारी करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया अपने ग्रेजुएशन में, और आगे चलकर भी उन्होंने फिर पॉलिटिकल साइंस से अपना ऑप्शनल तैयार किया और साथ में अपनी यूपीएससी की तैयारी की. साथ अभी मेरी कनिका से बात भी हो रही थी तो उन्होंने बताया कि तैयारी 11वीं से ही शुरू हो गई थी, that she had started reading basic things from 11th standard. But again the serious study happened from her graduation 3rd year, जहाँ से इन्होंने सिंसियरली बातें शुरू की. This is to tell you that आप ये मत सोचिए कि अगर 11th से आपने शुरू नहीं किया तो नहीं कर सकते, but it should be as good as early as better. लेकिन अपने 3rd year आते हुए या फाइनल ईयर एग्जाम देने के 1 साल पहले से अपने आप को पूरे सिंसियरली तैयारी शुरू कर दीजिए, that you should be on the right track. And how was the prelims strategy then? Prelims in CSC 2021, I Yes. dedicated And around... just for the information of everyone, Kanika appeared interview in her first attempt also, and then in her second attempt now she has got 9th rank. So yes, say in 2021 first attempt में कैसे prelims कर रहे थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि प्रीलिम्स ऐसा कहा जाता है कि प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है 3-4 अटेम्प्ट में, और ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, तो प्रीलिम्स के लिए ही मैंने डेडिकेटेडली अराउंड 7 मंथ्स दिए होंगे. इन फरवरी 2021 आई स्टार्टेड फॉर प्रीलिम्स, और फिर टाइम एक्सटेंड हुआ था 3-4 महीने बिकॉज ऑफ कोविड, और तो लगभग 7 महीने मैंने पूरा प्रीलिम्स पे ही फोकस किया. प्रीलिम्स के नोट्स बनाए, पूरी जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके नोट्स बनाए, और पूरे तरीके से फैक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से खंगाला और प्रीलिम्स को दिया. सीसैट भी तैयार किया. सीसैट हालांकि मैंने बहुत कम तैयार किया है, एंड फिर कई बार CSC 2021 में 4 दिन किया होगा लास्ट के. हालांकि ये कहना चाहूँगी कि किसी को ऐसा करना नहीं चाहिए, स्पेशली अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट लाइक मी, बट आई हैड दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन मी कि मैथ के लिए कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ जाता है, और कुछ आए ना आए, समझ आए ना आए, बट आई गेट दैट इंट्यूशन कि हाँ ये मैथमेटिक्स का यही आंसर हो सकता है. एंड आई रिग्रेट कि मैथमेटिक्स मैंने आगे नहीं लिया, एंड आई वुड लाइक टू इम्प्रूव ऑन दो स्किल्स एज वेल. प्रीलिम्स के लिए अब की बार की जो मेरी स्ट्रैटेजी रही,
क्योंकि 5 ही दिन थे मेरे पास प्रीलिम्स तैयार करने के लिए। तो आई अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच आई पिक्ड अप ऑन 31st of May, a day after the results, that it's more focused on logic, it's more focused on concept instead on the facts और बाकी सारी चीज़ें। और लॉजिक और कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर रहे हो चीज़ों को, तो आप प्रीलिम्स को समझ सकते हो ट्रिक्स लगा के। आप शॉर्ट नहीं होगे, आप शायद 2 ऑप्शंस तक पहुंच जाओ। आई एक्चुअली यूज्ड टू डू, एक स्टार लगा देती थी अगर शॉर्ट होता था, फिर हाफ टी लगाती थी, हाफ तुक्का, अगर आधा मतलब 2 ऑप्शंस बचे हैं 1/3 तुक्का, फुल तुक्का लगाया करती थी। मतलब एफटी वाले भी काफी क्वेश्चंस हो गए थे अब की बार तो प्रीलिम्स में, और पापा How many बल्कि questions did you attempt? I had a strategy of attempting around 91 से 94 के questions, बीच में, right. and I used to leave other questions which I have no idea और बहुत ही ज़्यादा factual है, Right. तो उन्हें मैं छोड़ दिया करती थी। And 1994 में how many would you try getting correct? I think I 60 odd. 60 more than 60. राइट परफेक्ट। तो एक बात बहुत अच्छी बताई है कनिका ने, जो सब लोग ध्यान में रखेंगे, दैट प्रीलिम्स इज अ लॉट अबाउट कंसेप्ट, अ लॉट अबाउट सॉल्विंग द पॉइंट्स देयर। सो डोंट कंसंट्रेट ओनली ऑन फैक्चुअल्स कि यही फैक्चुअल वैसे ही आ जाएगा, बट कंसेप्ट जिसके अच्छे हैं then you are able to solve. I think many questions are solved over there only, Yes. isn't it? Especially for economics, it's a lot more conceptual. For example, in CSE 2021, there was a question whether RBI can do these things or not. Right. And if one has an understanding कि RBI क्या-क्या चीजें कर सकता है, Right. then that question could have been solved. तो वो Right. concept है कि RBI की power किस extent तक जा सकती है। Right. वो fact नहीं है कि RBI ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। Correct. And how did the GS preparation go on? One, we were connected with the GS course, and otherwise, how did the preparation go on? Share it with the students कि क्या क्या करते थे क्या? तो जीएस की प्रिपरेशन वैसे तो मैंने सबकी इंटीग्रेटेड रखी थी, प्रीलिम्स Right. मेंस और इंटरव्यू में भी जीएस का कंपोनेंट रहता है, और वही सोर्सेज जो प्री में यूज़ होंगे वही मेंस में यूज़ होंगे। बट जब अगर हम मेंस की बात करते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो आंसर लिख रहे हैं किसी चीज़ के लिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत डिटेल्ड है जीएस के लिए स्पेसिफिकली। तो अगर आप एक टॉपिक तैयार कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा मत जाइए, क्या पता आपने उसके बारे में 3-4 जहाँ से भी पढ़ा है उतना पढ़ लिया है जितना इनफ है उस आंसर के लिए, एंड इनफ आपको जब पता चलेगा व्हेन यू राइट आंसर्स, और थोड़ी वैल्यू एडिशन इधर उधर से करने की ज़रूरत है। समटाइम्स वी स्ट्रेस अ लॉट अबाउट फ्यू टॉपिक्स विच मे नॉट हैव, मतलब आप बहुत 3-4 दिन लगा दिए या 6-7 दिन लगा दिए एक ही टॉपिक को तैयार करने में, और क्या पता उससे एक ही क्वेश्चन हमेशा आता आया हो या एक ही क्वेश्चन बनता हो। GS1 के लिए I used again the same sources. उसमें I used to have cheat sheets before the exams. Right. तो cheat sheets में मैं लिखती थी कि अगर इस तरीके का पेपर, इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो ये चीज़ें आनी चाहिए, इसमें डायग्राम आएगा, इसमें डेफिनेशन आएगी, इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, एंड अगर ये टॉपिक होगा तो आप ये डाल सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री से कनेक्ट करोगे, मिडिवल हिस्ट्री से कनेक्ट करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री से भी कनेक्ट करोगे, लास्ट में SDG का रेफर करोगे, अमृतकाल को रेफर करोगे। Nice. तो एंड फॉर GS2 आई फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग कि जो भी मैं आंसर डाल रही हूँ उसमें मेरे लॉज का मेंशन है, आर्टिकल्स का मेंशन है, स्पेशली DPSP का मैं स्ट्रेस दिया करती थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मुझे याद है और मैं उन्हें मेंशन कर रही हूँ, SDG गोल्स को मेंशन कर रही हूँ, द विजन ऑफ अमृतकाल इज बीइंग मेंशनड। GS3 के लिए तो सर का कोर्स काम आया, जो एक क्रैश कोर्स हुआ था दिसंबर 2020 में फॉर इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, that solved all my doubts about economy. You have been nice saying that, and I feel good. But actually, you know, जो बेनिफिट तुम ले पाए, आई थिंक उसके पीछे ये भी रहा कि तुमने अपने बेसिक्स पे काम किया हुआ था, so you could get what I was talking. But it's always good to be a part of your journeys, and especially when I met you today and the happiness I saw on your face, it made my day also. And you said that, sir, good to see you. So, you know, it is always good. And it's always good to see you, actually. Thank when you. you guys have Fortunate enough for that. done. Always. And 4 के लिए क्या किया? 4 के लिए काफ़ी सारे सोर्सेज, तो पहले जैसे मैंने बेस जो था वो लेक्सिकन से शुरू किया था 4 का, बट देन आई फोकस्ड अ बिट ऑन कि कुछ टॉपिक्स मैं तैयार कर लूँ, कुछ टॉपर्स की चीज़ों को रेफ़र किया, जैसे श्रेयांश
कुमुद सर ने एक PDF बनाई हुई थी जिसमें हर चीज़ की डेफिनेशन थी। उसमें मैंने अपने खुद के एग्जांपल्स ऐड किए और उस डेफिनेशन को याद किया। देन आई फोकस मोर ऑन करंट अफेयर पार्ट, और गवर्नेंस के पार्ट को मैं GS3 से कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ। नाइस। और उसको मैंने फिर एग्जाम्पल्स एथिक्स में अच्छे डाले। कोर्ट्स के लिए एस्से वाला कंपोनेंट यूज़ किया। तो GS2, अगर मैं सेक्शंस की बात करूँ मेरी अलमारी में, तो GS2 एथिक्स और एस्से का एक सेक्शन होता था जिसमें वो आपस में इंटीग्रेट हो जाते थे। प्लस आई यूज टू ऐड लर्निंग्स विच आई हैड फ्रॉम रीडिंग भगवद गीता। तो उसका एक कंपोनेंट था कि भगवद गीता से क्या है। मैंने डॉक्टर कलाम की एक बुक पढ़ी हुई थी, दैट इज इग्नाइटेड माइंड्स। तो उसमें से कुछ कोट्स मैंने निकाल लिए थे। देयर वाज आल्सो अ बुक व्हिच आई हैड ऑफ डॉक्टर कलाम, जिसमें एक कंपाइलेशन है उनकी स्पीचेस की। तो उसमें मैंने कुछ हाईलाइट करके उसमें से चीज़ें निकाल ली थी जो मैं अपने एस्से में GS4 में यूज़ कर सकती हूँ। वो बुक मैंने इंस्पिरेशन के लिए पढ़ी थी एंड दैट बुक्स कंटिन्यू टू इंस्पायर मी। दे डू। ऑल्सो गुड टू ग्रेट कॉर्पोरेट के लिए एक मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी। तो जो मैंने बुक्स पहले पढ़ी हुई थी उनको मैंने उठाया, like Good to Great by Jim Collins and Built to Last by Jim Collins and Barry Eporas I think। तो उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया कि इनमें से मैं ये चीज़ें कॉर्पोरेट वाला अगर क्वेश्चन आएगा एथिक्स में तो ये डाल सकती हूँ। एसेंशियल नहीं है बुक्स नहीं पढ़नी शुरू करनी है, क्योंकि मैंने वो बुक्स पढ़ी हुई थी। आई यूटिलाइज दोज बुक्स एंड एडेड टू माई आंसर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा स्मार्टली आपने जो चीज़ें की हैं उनको ऐड कर दीजिए। आई थिंक यू विल स्पीक बेटर ऑन दैट। मुझे ये लगता है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बिटवीन मेंस एंड द नेक्स्ट प्रीलिम्स देयर इज अ लॉट ऑफ गैप। An interview also call gives you a lot of chance जिसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। I think that is the time when you can read some couple of good books, and that I think is a holistic development. एक बात और बताओ कनिका, how do you remain so calm? I think I'm calm because being anxious actually lead to a lot of burden, और एनजाइटी को थोड़ा सा काम, और आई से काम होने के पीछे अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँ आपको तो वो है, मेरे पापा मुझे कहते हैं चिंता मुझ पे छोड़ दो और आप अपना काम करिए। तो चिंता उनके पास है और काम करना मेरा फर्ज है, एंड दैट काम करना एक्चुअली मेक मी काम। राइट that you remaining in work। मैं अपने तरीके से जो इसको फॉर्मलाइज कर रहा हूँ for students is that you remain busy with the process, and then anxiety I think can take a back seat. When you worry more about the result, then I think we get more anxious in this exam. Wonderful. So how was the consistency maintained करने का? Off days को कैसे handle करते थे? किसी दिन तो मन नहीं करता होगा पढ़ने का? I think a very tight hug with my mother and my father used to solve that for me. So अगर ऑफ लग रहा है मम्मा को जाके बस हग कर लो, ऑफ नहीं लगता उसके बाद, और एक दिमाग में रहता था कि हाँ प्राउड फील कराना है इन्हें, बेस्ट करना है। तो ऑफ डे होते थे, ये नहीं है कि ऑफ डेज नहीं होंगे, बट ऑफ डेज में थोड़ी तरीका चेंज कर दो पढ़ने का, या फिर जस्ट बी विद देम, बी विद द पीपल हु सपोर्ट यू, हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू। इन माय केस माय पेरेंट्स वर, दे अंडरस्टूड मी द बेस्ट। तो ऑफ डेज को उन्होंने, आई थिंक ऑफ डेज में मेरी स्ट्रेंथ निकल के आती थी कि हाँ ये ऑफ नहीं है, इसमें आप और मजबूत हो सकते हो। वो मोटिवेटिंग डेज हो जाते थे ऑफ डेज से। Perfect. And apart from our GS economy question answer course, you are also attached to Next IS with IGP interview guidance program. Yes, sir. So, and you have, as we were discussing before your interview, that with Shukla Sir's Board 180, you have done pretty decent. So, how was it like an interview? What was and last year's interview and this year's interview, was that something different? या वैसा ही जा रहा था? For UPSC mock interview, I'll say even the set of questions and the way they were asked, it was different. It was a bit different for both the boards, but एक चीज़ रहती है कि एक level of questions होते हैं, and the way you deal that moment that matters. अगर आप anxious हो, अगर आपके दिमाग में clarity नहीं है, you don't showcase yourself to be a public servant. That एक personality वो public servant की जो वो expect कर रहे हैं, that remains सेम। कोई भी बोर्ड में आप जाइए, कोई भी किसी भी टाइम आप इंटरव्यू दीजिए, सो दैट डजंट चेंज, एंड दैट्स द मैट्रिक्स आई थिंक दे हैव सेट फॉर देम, एंड दैट्स द रीज़न कि बोर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बोर्ड टॉप मार्क्स भी देता है, लोएस्ट मार्क्स भी देता है। सर राइट, नो यू आर राइट। और क्वेश्चंस वर मोस्टली फ्रॉम व्हाट DAF and your? This time the questions were from my DAF, also my state. PSI was also covered. Okay. And then a few things that inspire me, motivate me, how I'd like to work as an IS officer. Case studies were also there. So a different. So it was a holistic interview. It was a very diverse and holistic interview, sir.
Perfect, perfect. And how was your interview experience at Next IAS? Kanika? At Next IS, I actually took 2 interviews. So this time I had in mind that I'll be giving a few interviews at few of the best institutes, and I'll be repeating those interviews. Okay. And the reason behind repeating the interviews was to ensure that whether I'm doing better from the last one, whether I've improved or not. So I repeated one at Next IS, and both the interviews were extremely amazing. Right. And the panel actually encouraged me, Perfect. told me. Just 2 questions more, Kanika. One is that when will you suggest people should start answer writing? It should, I think, whenever a topic is being prepared, Right. it should be there in mind कि मुझे कितने extent तक इस topic को prepare करना है, Depth में कितना जाना कितना depth में जाना है. Because I remember when I read Pratish Pandey sir and Gaurav Agarwal sir, he rank AII 1 2013. है? Right. तो उनकी एक स्ट्रैटेजी रहेगी. आई थिंक प्रत्युष सर का मुझे एक याद आता है, उनका एक ब्लॉग है जिनमें उन्होंने लिखा हुआ है कि डिपेंड्स, एक जर्नी है, एक माइल है, आप चाहे उसे क्रॉल करके पार करिए, एक साइकिल पे करिए, एक बाइक पे करो, एक एरोप्लेन लेके जाइए, तो वो डिपेंड करता है आप तरीका क्या अपना रहे हो. सो दैट्स देयर एंड दैट मैटर्स. And one last thing, when you unfortunately didn't clear after your interview, you had 5 days for your prelims, and I mean the result and the prelims. So how do you suggest to the students जो अभी अब prelims के close हैं, that what should be the last 3-4 days? What should people do? I know everybody is an individual, so सबके अपने अपने defense mechanisms and methods हैं. What was your method that when you got closer to the exam, how would you keep yourself, kind of aloof, और जहाँ पे anxiety overtake ना कर ले, तो वो कोई process follow करते थे? लास्ट टाइम की प्रोसेस मैं बताना चाहूँगी. लास्ट टाइम व्हेन द रिजल्ट केम, आई डिडंट शेड अ सिंगल टीयर. आई वाज बैक टू माय टेबल and I told myself, now you are not going to look at any newspaper, watch any interview, watch even an ad, और कोई ad नहीं देखनी है, कुछ नहीं करना है, बस अब प्रीलिम्स करना है. उसमें CSAT भी करना है तैयार क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ है. तो यही है कि अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, जैसे सर आपने कहा, बट प्रीलिम्स में यही रहेगा कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे आप चाहिए, और इन लास्ट 3-4 दिन में मैटर करता है कि आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है. पिछले साल के क्वेश्चंस का आप यूज़ कर सकते हैं. एंड just believe in yourself. Don't develop any anxiety from the results which are coming out. Don't develop any kind of fear in yourself. Just believe, because prelims में मैटर नहीं करता शायद आप कितने प्रिपेयर्ड हो, ये मैटर करता है कि उस टाइम जो आपके पास पेपर आया है, कितने क्लियर हेड से आप उस पेपर को मैनेज कर रहे हो. Very correct, very correct. So this is Kanika Goyal from our side. We are very happy that she has been a part of Next IAS family. I am very happy that she had been a part of my GS Paper 3 question answer course. And it is all our pleasure when I see these lovely people, youngsters, joining Indian system. It gives me a lot of pleasure. We know that it is in safe hands. And this is what I would like you all to go forward with. Take basic things from Kanika, remain calm, practice well, and remain consistent. So it was a great pleasure talking to you, Kanika. Wonderful, actually. I really felt I'm wonderful. fortunate enough to be invited to Next IAS and meet you, sir. Thank you. Thanks a lot.